Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So let's get started with the class 10th biology that I was studying about. We were talking about chapter number 3rd, that is about reproduction. Yeah, how you can say how do organisms reproduce. So let's get started. Now, what we have to study, we have gone up to the structure of the flower and sexual reproduction in flowering plants, whatever. So now, very important is that is sexual reproduction in humans. Okay, now we have to check it out whether there is a difference in sexual characters and everything like that. And let's check it out. What are the differences and different things? Okay, their processes and definition, whatever. So let's get started. I hope you have the notebooks with you. Uh, Write all the important things that comes your way. Now what are the contents now? Let's check out the index, what we have to go through. There is definition we have to go then first, what we have done in the previous lectures. Then we have to go with the different reproductive structures, that means the processes and the things which are involved for that particular thing, for male as well as for female. Then we have to do the process, right? Then we have to go the last topic, that is sexual cycles in females. Okay, so one by one we have to go all these things. I hope you will understand, because I have put all the things in a very simple way to understand the things and doing not any complex kind of things. So let's get with the new slide. Now what is the reproduction? Now what is reproduction? We have studied in the previous thing that there are some flowers who reproduce by two ways. They are unisexual or as well as bisexual. But as far as humans are concerned, humans are sexually unisexual. Okay, what are they? Humans are, I have written here, unisexual. That means they show sexual dimorphism. That means differences in their external structures. ठीक है, फीमेल और मेल के अंदर यही बहुत बड़ी चीज़ है कि दोनों के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है. दैट मीन्स डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हमें थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको क्या है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद. दे आर विजिबली डिफरेंट इन फिजिकल बिल्डअप, ऑब्वियसली एक्सटर्नल जेनेटिलिया, देन एक्सेसरी sexual characters, right? Both male and female reproductive system consist of many organs which are differentiated into primary and secondary or accessory sex organs, राइट. अब आप जब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर आर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत सारी चीज़ों पे होती है, ठीक है ना. बता दिया मैंने आपको, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे होता है या एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, राइट. आई शुड से वाइडनिंग ऑफ द शोल्डर, वॉइसेस का बदल जाना, ठीक है ना, बॉडी के अंदर चेंज आना, एनलार्जमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स जो मेल्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना. देन प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ऑल दोज थिंग्स दैट कम अंडर दिस डिफरेंट चेंज. तो ये जो चीज़ है इसी को बताया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. क्लियर. नाउ टेकिंग अबाउट व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद द, we will take it into two different categories. First we will study the male system, then we'll go with the female one. Now if you talk about male reproductive system, तो वो वाली चीज़ दो सब headings में हम उनको divide करके पढ़ेंगे so that it becomes easier for you and me to understand. Okay, now what are the things? Two things. One, I told you, that is the primary sex organs. Then we have to go with accessory sex glands. Okay, this is R here, accessory sex glands. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या चीज़ आती है वो आपको याद रखना पड़ेगा. एक टेस्टिस हैं, देन वी हैव टू स्क्रोटम, वास डेफरेंस इज देयर, यूरिथ्रा इज देयर एंड देन पीनस, ठीक. और एक्सेसरी के अंदर हमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरिथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड जिनको बोला जाता है, या सेमिनल वेसिकल. ये थोड़ी सिक्रीशंस कुछ डालते हैं जिनका फर्दर काम होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे. चलिए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की जब आप बात करते हैं इन सबको हमने डिटेल में एक एक करके पढ़ना है. With structure I'll show it and you will make the notes of all those things. So let's move ahead. This is the whole reproductive structure in males. Okay, whole reproductive structure. If you take it in broader sense कि कैसा है reproductive, तो you can see there are different things you can see. If it gets a bit complicated, शायद ज़्यादा लिखा हो या कुछ ऐसा हो as far as 10th is concerned, but for 12th and above classes it's a structure you need to go through.
see some things you need to understand here. I have told you testes, it's right here. Then we have scrotum, ये कवरिंग यहाँ पे देख सकते हैं. एक चीज़ यहाँ पे है, ये अटैचमेंट आप देख सकते हैं. जब इसको याद रखिएगा बाद में जब हम पढ़ेंगे. और यहाँ पे ये तो टेस्टिस है, ये वाला एरिया. इसके ऊपर ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, इसको बोला जाता है एपिडिडाइमस. इसके 3 पार्ट होते हैं. डिफरेंस मैं बताऊंगा बाद में क्या क्या है. फिर उसके बाद ये वास डिफरेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये जो ये ट्यूब से निकल के ऊपर जा रहा है, दिस इज़ वास डिफरेंस. ठीक है, ओके. एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ द पिनाइल एरिया. ठीक है, दिस इज़ द पिनाइल एरिया. फ्रंट टिप को ग्लांस पेनस भी बोला जाता है. देन ऑल्सो दे हैव सम मस्क्यूलर थिंग्स इन इट, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम शेफ्ट वेफ्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो देन आई टोल्ड यू अबाउट द एसेसरी. यहाँ पे है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आप देख सकते हैं, जिसको हमने कॉपर्स ग्लैंड का नाम दिया. देन यू हैव इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ पर. और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे थे, ये देख सकते हैं ब्लैडर के नीचे पीछे से छुपा हुआ बैलून टाइप, ये वाला एरिया, ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेमिनल वेसिकल, ये वाली. देन दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ यूरिन, और यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की ये क्लियर. तो ये वास डिफरेंस की ट्यूब है जो ऊपर जा रही है, ये घूम के यूरिनरी ब्लैडर से बाहर से यहाँ से होकर यहाँ से पिनाइल ओपनिंग से बाहर आता है. ठीक है, ये सिंगल ओपनिंग होती है फॉर मेल, फॉर बोथ गैमेट रिलीज के लिए and for also urination. As far as female is concerned, they are the different things. So let's check it out. External जितनी भी ये characters हमें दिखते हैं, internal क्या है उनके बारे में हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. So move ahead. ये देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे बता दिया है अगर आप देखना चाहें. So there are pair of testes, ये आप देख सकते हैं, pair of testes here. ठीक है, this area is the penile part. Okay, wait just a minute, the slide skipped. See, this is the prostate gland जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था. देन ये जिसको डक्टस डिफरेंसेस आप बता रहे हैं, ये वही है वास डिफरेंस वाला एरिया. ये सेमिनल वेसिकल हो गया, ये यूरिटर है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसकी मैं भी आपको बता रहा था पीछे. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये ऊपर थोड़ी सी अटैचमेंट आपको दिख रही है इसके ऊपर, तो ये हो गया मेरे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. ओके, सो चलते हैं आगे, चेक करते हैं इनके सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या हैं. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बाद हम आ जाएंगे एक्सेसरी पे, फिर हम फीमेल के उस पर चलेंगे. सो सबसे पहले है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, दैट इज टेस्टिस. सो टेस्टिस डेफिनेटली क्या हैं, दे आर दी व्हाट, दे आर इन पेयर. कितने होते हैं, 2 होते हैं. और ये रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, मेल गोनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए. एक हार्मोन है मेल का, मेल कैरेक्टर्स को जो डिफाइन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ अ मेल गैमेट. चलिए जी, तो क्या स्ट्रक्चर है, वेयर दे लाई एक्चुअली. सो सी, ह्यूमन मेल हैज़ 2 टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी. किसके, एब्डोमेन से बाहर होता है ये, जिसको बोला जाता है इनग्वाइनल कैनाल. यहाँ पे ये इस नाम को आप याद रखेंगे क्योंकि इसके बेस पे मैं एक चीज़ आपको बाद में बताऊंगा. आई होप आप समझ पाएंगे. इनग्वाइनल कैनाल से एक क्या रहता है, एब्डोमिनल एरिया जो है, एब्डोमिनल एरिया कैविटी से इनग्वाइनल कैनाल एक जगह है बाहर, जहाँ पर ये क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, बाहर रहते हैं. ठीक है ना, ओके. जिस जगह पर ये रहते हैं उसको बोला जाता है स्क्रोटम. हमें वो भी अभी वो पार्ट भी आ रहा था, स्क्रोटम. नो सी, स्क्रोटम क्या है, इट इज़ एक्चुअली पाउच, स्किन का पाउच है जिसके अंदर इट्स ए प्लेस वेयर दिस टेस्टिस आर प्लेस्ड. अब जो स्क्रोटम है ये टेस्टिस को किससे पकड़ के रखता है, उनको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड. क्या बोलते हैं उनको, स्पर्मेटिक कॉर्ड. अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, एक्चुअली ये कुछ स्पेशल मसल्स के बने होते हैं जिनको क्रीमेस्टर मसल्स बोला जाता है. आप लिख सकते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, CREMASTER, क्रीमेस्टर मसल्स. इन मसल्स की बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर वेरी contractive type of and relaxive type of muscles. Any signal they receive from the brain, anything they receive from the brain, उसमें क्या होता है कि ये सिग्नल के रिसीविंग पर ये क्या होती है, या तो कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे. मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ. ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाट इज हैपनिंग, दैट these muscles contracts vigorously, जिसकी वजह से testes are pulled up towards the abdomen. उससे क्या होता है, उससे द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली हायर देन द टेस्टिस टेम्परेचर. सो जो ही टेस्टिस जो है बॉडी के नज़दीक जाते हैं, द टेम्परेचर इंक्रीज द स्पर्म इज रिलीज्ड.
राइट, एंड सम अदर थिंग्स लाइक ड्यूरिंग फाइट एंड एनीथिंग लाइक दैट, जब हो जाता है तो उसके टाइम पे भी ये मसल्स कंट्रैक्ट करके टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, दे कंट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो क्रीमेस्टर मसल्स का ये बना होता है। चलिए जी आगे। सो टेस्टिस आर आल्सो कॉल्ड मेल गोनेट्स, जो अभी मैं आपको बता भी रहा था, मेल गोनेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ये दिस इज द मेन साइट फॉर व्हाट, मेल गैमेट प्रोडक्शन। मेल गैमेट क्या, हमारे पास स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। अब देखिए, जो इसका मैंने आपको बता दिया अभी जो फाइब्रस कॉर्ड है, ठीक है ना, जो फाइब्रस कॉर्ड है, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखानी है, वो आपने शायद देखा भी यहाँ पे, ये एरिया जिसको हमने जबरकुन नाम दिया, जबरनिक्यूलम, ये जो फाइब्रस कॉर्ड है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसका ये बता रहा मैं, फाइब्रस कॉर्ड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्डल एंड ऑफ द स्क्रोटल वॉल। कॉर्डल एंड होता है लोअर एरिया, इसके ऊपर जो एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर आपने देखा डायग्राम में, उसका जो लोअर एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉर्डल एपिडिडाइमस। तो कॉर्डल एरिया से कनेक्ट करता है, लोअर अटैच रहता है किसके साथ, स्क्रोटल वॉल के साथ, तो उस एरिया को बोला जाता है जबरनिक्यूलम। जबरनिक्यूलम, ठीक है, आप समझ गए, GUBERNACULUM, जबरनिक्यूलम। ठीक है, ये हो गया हमें टेस्टिस के बारे में। अगर अब आप टेस्टिस को थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखिए हमें मेल टेस्टिस का, तो किस तरह का दिखता है और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स लाइंग इनसाइड वेयर एक्चुअली स्पर्म इज फॉर्म्ड। मेन काम क्या है इसका, टेस्टिस का, इसका मेन काम है, यस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। तो ये बनता कहाँ पे है, व्हाट इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो यू सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर थोड़ा सा हम और डीप चले गए हैं, अंदर चले गए हैं चेक करने के लिए, वेयर इज द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। देख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी, ये यहाँ पे डिफरेंट नाम दिखेंगे। टेस्टिस जो है ना, इसके ऊपर 3 तरह की लेयर्स होती है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, 3 तरह की लेयर्स होती है, कितनी, 3। सबसे पहले जिस लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर, उसको बोलते हैं ट्यूनिका विजाइनलिस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आई विल मार्क इट, ट्यूनिका विजाइनलिस, दिस वन देख लीजिए कहाँ पे, ये टेस्टिस के इधर बाहर, ठीक है ना, दिस इज द आउटर लेयर। देन ट्यूनिका अल्बुजिना, इनर लेयर, ये जो मोटी दिख रही थी ये ट्यूनिका विजाइना, और इसके बाद ये ब्लैकिश के बाद फाइब्रस टाइप आपको दिख रही है ये वाली, सो दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन वी हैव ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ओके, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये तो ब्लैकिश वाली हो गई है। और उसके बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा लकीरें दिख रही हैं आपको इस वाले एरिया में, ये, तो ये इनको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये है इनर नेटवर्क जहाँ पर कैपिलरीज का मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ये वही जगह है, ठीक है ना। अब और एक चीज़ है, उनमें कुछ और भी हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोब्यूल्स। लोब्यूल्स ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स का मतलब है कंपार्टमेंट। मैं आपको यहाँ थोड़ा मार्क करके दिखा रहा हूँ, इस तरह का जो एरिया है, ये हो गया एक कंपार्टमेंट, ये हो गया दूसरा कंपार्टमेंट, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, दीज आर द लोब्यूल्स। अब ये जो लोब्यूल्स हैं, ये लोब्यूल्स कितने होते हैं, हर एक टेस्टिस में देयर आर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, कितने, 250, क्लियर, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, दैट मीन्स ह्यूज नंबर। अभी इनके अंदर भी एक और चीज़ है, अब देख लीजिए, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इनके अंदर क्या है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो रन करता है इनके बीच में से। ये आप देख सकते हैं, इस तरह कर रहा हूँ मैं, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसके बीच में, ये ज्वाइन करते हैं आपस में इधर, फिर इस तरह से होके यहाँ से ये इस तरह से बाहर आ रहा है। आप समझ गए, ये जो यहाँ पर कॉइलिंग है स्ट्रक्चर, ये कॉइल जो है अंदर टेस्टिस के लोब्यूल्स के अंदर, इनको बोला जाता है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब जो सेल्स होती हैं किसकी, अब देख लीजिएगा, ये सेल्स किसकी, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की जो सेल होगी, इसमें से अगर आप एक निकाल दें तो इसमें से एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल देख लीजिए, इस तरह का दिख रहा है आपको, इस तरह चल रहा है। अब ये एक लोब्यूल था, इसके अंदर ये है। अब ये जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, इसकी वॉल्स जो होती हैं, इसकी वॉल्स में होती हैं सेल्स। क्या होती हैं, इसकी वॉल्स में होती हैं सेल्स। अब ये सेल्स कौन सी हैं, 2 तरह की सेल्स होती हैं डेफिनेटली। एक तो इसको ग्रो करना है, ओके, एक इसको क्या करना है, एक इसको ग्रो करना है, और दूसरा इसको
नरिशमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इन दो के लिए इसको दो तरह की सेल्स मिलती हैं जिनका डिफरेंट नाम है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक सेल का नाम होता है लेडिग सेल, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लेडिग सेल, LEYDIG, लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स, और दूसरी को बोलते हैं सर्टोले सेल्स, ये वाली, या सस्टेंटिक्यूलर। दो तरह के नाम हैं, सो आप इनको याद रखिएगा, सस्टेंटिक्यूलर सेल, सर्टोले सेल, या लेडिग सेल जिसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये सेल्स क्या करती हैं, लेडिग सेल सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब यहाँ पे है दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या सिक्रीट कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, किसकी वजह से, लेडिग सेल की वजह से। कभी ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड by which cell of the seminiferous tubule, you should write it Leydig cell। हाँ, दूसरी चीज़ है अब सस्टेंटिक्यूलर जो सेल है, सस्टेंटिक्यूलर सेल का क्या काम है भाई। अब देखिए, सेल को बड़ा होने के लिए, मैच्योर होने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमको इन्हीं सर्टोले सेल्स से। तो ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली नरिश द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड इमेच्योर जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है, कुछ प्रोसेस होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाता है, फिर वो स्पर्म बनती है। तो इसको इस नरिशमेंट के लिए, इस एनर्जी बनाने के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसको जो सेल्स ज़रूरत है उनको बोलते हैं सर्टोले सेल्स या सस्टेंटिक्यूलर सेल। ओके, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, अब आप देखेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, EPIDIDY, एपिडिडाइमस। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये टेस्टिस के ऊपर का स्ट्रक्चर है। मैं इसको यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला एरिया, ये इस तरह का, ये एपिडिडाइमस है, ठीक है। एपिडिडाइमस जो है ये टेस्टिस के ऊपर होते हैं, इसी में से वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की कॉइलिंग स्ट्रक्चर होकर निकलती है। ये आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर ये, ठीक है। ये जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल यहाँ से निकल रहे हैं, उसकी एक वजह है। तो हम देखते हैं पहले एपिडिडाइमस जो है इसके कितने एरियाज हैं। अब देख सकते हैं 3 एरिया होते हैं इसके। एक होता है इसका अपर एरिया, ये वाला एरिया, एक हो गया इसका अपर एरिया जिसको आप बोल रहे हैं कैपट, क्या बोलते हैं आप इसको, कैपट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कैपट एपिडिडाइमस, दैट मीन्स दी अपर और एंटीरियर, फ्रंट वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया ऑफ वास एफेरेंशिया ओपन्स। अब वास एफेरेंशिया क्या होता है, वास डेफरेंस मैंने आपको बताया था। वास डेफरेंस वो एरिया है जब कॉइलिड स्ट्रक्चर टेस्टिस से बाहर आ जाता है, ये वाला, ये हो गया, ये है वास डेफरेंस, यहाँ पे लिखा है। अब वास एफरेंस कौन सा, वास एफरेंस होता है एपिडिडाइमस के अंदर, यहाँ से ये और टेस्टिस के बीच में जहाँ पे कनेक्शन होगा, एपिडिडाइमस और टेस्टिस के बीच में जो कनेक्शन है उसको बोला जाता है वास एफरेंस। क्लियर। सो एक तो है हमारे पास कैपट एपिडिडाइमस, दूसरा है कॉर्डा, दिस इज द मिडल पोर्शन, दिस इज द मिडल पोर्शन। कॉर्डा, सॉरी, दिस इज फर्स्ट वी हैव टू कवर कार्पस, कैपेट के बाद कॉर्पस है, यस, कैपेट है, फिर हमारे पास कॉर्पस होगा, यस हियर इट इज कॉर्पस, देन वी हैव द कॉर्डा। दिस इज द अपर पोर्शन, दिस इज द मिडल पोर्शन एंड दिस इज द लोअर पोर्शन। 3 तरह के एपिडिडाइमस में जगह होती है। ये एपिडिडाइमस का काम क्या, एक्चुअली ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है। ओके, चलिए आगे, नेक्स्ट इज स्क्रॉटम। ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में। स्क्रॉटम, अब जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद है, इसका काम क्या है देख लीजिए, सीधी सी बात है, स्क्रॉटम का सबसे बड़ा काम है द एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर। थर्मो रेगुलेटर, थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेटर मीन्स ये हीट को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये समझने की चीज़ है कि भाई टेस्टिस को क्या टेम्परेचर डिफरेंट होता है बॉडी से, डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज डिफरेंट एज दैट ऑफ अदर बॉडी सिस्टम। अगर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन सेम टेम्परेचर हमारी टेस्टिस का नहीं होगा, उससे कम होता है, फ्रॉम 2 to 3 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज लोअर। वाई, बिकॉज स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है ताकि स्पर्म बन सके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। सो दे एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर, ठीक है ना। सो इट्स अ पाउच ऑफ स्किन जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, जिसमें दोनों स्क्रॉटल सैक होते हैं, जिसके अंदर 2 टेस्टिस एपर्चर के थ्रू हैंग रहते हैं एक ही जगह पर। ओके, सो स्क्रॉटम एक्ट एज नाउ थर्मोरेगुलेटर, इसका मतलब ऑप्टिमल टेम्परेचर देता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए और मैच्योरेशन के लिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट ना। तीसरी, इट कीप्स टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, इट्स बॉडी
बॉडी टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन, ये मैं आपको अभी बता रहा था। दिस इज व्हाट इज अबाउट स्क्रोटम। नेक्स्ट इज वास डिफरेंस। आपने देखा वास डिफरेंस वाज द लोअर एरिया, जो आपने अभी स्ट्रक्चर के अंदर पीछे देखा वास डिफरेंस, जिसको वास डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं, आपकी बुक के अंदर ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ। सो ये क्या है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द कॉर्डा एपिडिडाइमस, अभी मैंने आपको दिखाया था कॉर्डा एपिडिडाइमस, जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एज इट इज़ कॉइल टाइप, सो इसलिए दिखता नहीं है, इतना बड़ा हो सकता है, 40 सेंटीमीटर बहुत होता है, तो 40 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब इनग्वाइनल कैनाल जो है इन कहाँ से, एनग्वाइनल कैनाल। अब मैंने आपको पता ना एनग्वाइनल कैनाल है क्या, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ। एनग्वाइनल कैनाल, अगर ये दो टेस्टीज हैं, ठीक, इनके ऊपर एक पाउच है स्क्रोटल, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये एरिया जहाँ से एब्डोमेन अब बनेगा, मतलब इसमें इंटेस्टाइन है, यहाँ ये एब्डोमेन है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, ठीक है। सो सी टेस्टीज है, ये एरिया, आई शुड चेंज द पेन, आई थिंक आपको थोड़ा समझ आने के लिए, लेट इट, दिस इज द एब्डोमिनल एरिया, और एब्डोमिनल एरिया और टेस्टिस के बीच में जो जगह है ये वाली, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया और टेस्टिस के बीच में जो जगह आपको दिख रही है, उस ये वाला एरिया, ये इसको बोलते हैं एनग्वाइनल कैनाल, ये आप याद रखिए, टेस्टिस और एब्डोमिन के बीच में जो एनग्वाइनल कैनाल। मेल्स में कभी कभी एक डिफेक्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं एनग्वाइनल हर्निया। वो एनग्वाइनल हर्निया क्या होता है, वो एनग्वाइनल हर्निया होता है कि ये जो एनग्वाइनल कैनाल है, ये कभी कभी यहाँ पर इसमें छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है। इस छेद होने की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कभी इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पार्ट नीचे आ जाता है, किसमें, इनग्वाइनल कैनाल के अंदर, ठीक है, इनग्वाइनल कैनाल के अंदर इसका आ जाता है। तो दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इनग्वाइनल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया, इसको याद रखेंगे, मेन पॉइंट्स में लिख के रखेंगे आप, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे मुझे क्या बताना है आपको कि ये जो इनग्वाइनल कैनाल है ये एब्डोमिनल कैविटी के साथ में है, ओके, इनग्वाइनल कैनाल एब्डोमिनल कैविटी के साथ में है, जहाँ पे साथ में नीचे क्या है, टेस्टीज हैं और स्क्रोटल सैक है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था। दूसरी चीज़ अब इसके अंदर क्या है, ये वास डिफरेंशिया करता क्या है, वास डिफरेंशिया क्या कर रहा है, आपने देखा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अभी आपने देखा टेस्टिस से निकल कर बाहर इस तरह इस तरह इस तरह जा रहा है, ये वास डिफरेंशिया था। तो ये वास डिफरेंशिया टेस्टिस से निकल के बाहर जा रहा है, ये वास डिफरेंशिया एक्चुअली करता क्या है, ये इसकी कनेक्शन आगे जाकर होती है ना किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के साथ, किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के साथ। मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए ये सेमिनल वेसिकल है, ये दिस इज द सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और यहाँ से निकला है वास डिफरेंस, ये एरिया है वास डिफरेंस वाला, ये कहाँ जा रहा है, आप इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, ये वास डिफरेंस कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, देखिए इसकी एंट्रेंस हो जाएगी ये सेमिनल वेसिकल के साथ यहाँ पर, इसका मतलब इट रन्स एंड गोज टू सेमिनल वेसिकल, फिर सेमिनल वेसिकल के आगे भी जा रहा है, ये देखिए आगे भी जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस होंगी जो इसमें चली जाएंगी और उसके बाद बाकी काम प्रोसेस आगे होंगे। आर यू गेटिंग मी, ओके, ऑल राइट, सो मूव अहेड। तो हम ये देख रहे थे कि वास डिफरेंस का कहाँ पर ये होता है और व्हाट इट इज डूइंग एज ए फंक्शन। Okay, so it acts as in what, it's pass the sperm to the seminal vesicle where mucus and alkaline fluids like sugar fructose mixes with the sperm। इस फ्रक्टोज पे मुझे आपको एक बात बतानी है, शुगर फ्रक्टोज मिक्सेस विद द स्पर्म। ये जो फ्रक्टोज होता है ना, इट्स ओनली फाउंड इन मेल्स, ठीक है ना, ये किस में मिलता है, स्पर्म के अंदर ये मिलता है मेल्स में, और कहीं पे इस तरह ये ओपनली नहीं पाया जाता है। अब जब कभी गॉड फॉरबिड कभी कहीं पर रेप अटेम्प्ट्स होते हैं या ऐसा कुछ केस हो जाता है, तो वहाँ पर जो टेस्ट किया जाता है ना, व्हाट इज़ द फ्लूइड दे टेक फ्रॉम द फीमेल, वहाँ पर चेक किया जाता है वेदर देयर इज़ फॉर्मेशन और देयर इज़ एनी काइंड लाइक फ्रक्टोज उसके जेनिटल पार्ट पे मौजूद है या नहीं, ठीक है। इफ़ इट इज़ फाउंड देयर देन डेफिनेटली दे कंफर्म इट दैट इट इज़ द attempt the case of attemption of this particular thing। okay, clear। so ये चीज़ मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बतानी थी। हाँ, तो चलिए जी आगे। सो वास डिफरेंस का ये हमें बताता है वास डिफरेंस के बारे में। उसके बाद ऑब्वियसली सेमिनल वेसिकल के बाद एक यूरिथ्रा वाला पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज आल्सो द प्राइमरी ऑर्गन, पैसेज वे है फॉर बोथ यूरिन एंड ऑल दिस मेल सिक्रीशंस ना। यूरिथ्रा के अंदर क्या हो रहा है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिन होगा, कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है। अभी आपको पीछे डायग्राम में आपने देखा भी,
ये कहाँ जाता है, इट रन्स थ्रू दी मेल पिनाइल ऑर्गन, ठीक है, और मेल जेनिटल पोर में ओपन करता है, बाहर ओबियसली ओपन करेगा। सो यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, इट शुड बी एक्चुअली पी, यहाँ पर हो गया है एल, यहाँ पे पी लिखेंगे आप, ठीक है। यूरिथ्रा हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं यूरिथ्रा के, अगर आपके नॉलेज के लिए है। अब जहाँ पर यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरेगा, यूरिथ्रा कब गुजरेगा, जहाँ पर यूरिथ्रा किससे गुजरेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से, वहाँ पे उसको बोला जाता है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। अब कभी यूरिथ्रा जो है लोअर पार्ट, जो प्यूबिक एरिया होता है, प्यूबिक बून जो होती है, ठीक है ना, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स के राइट पीछे जो हमारी बून है, और उस बून के जो बैक साइड में जो एरिया है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक है ना। ओके, 2 मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और तीसरा होता है जो पिनाइल ऑर्गन में है, पेनिस के अंदर होता है, उसको बोलते हैं पिनाइल यूरिथ्रा, या ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि इसको यूरिथ्रा ही बोलते हैं। और डिटेल में आप जानना चाहें तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग जो यूरिथ्रा की है कहाँ से होगी, दैट इज़ इन द पेनिस ऑर्गन। तो पेनिस के ऊपर जो उसको एक नाम दिया जाता है यूरेथ्रल मिएटस या मिएटस भी बोला जाता है। तो ये जो यूरेथ्रल मिएटस है, इट इज़ एक्चुअली द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा के अंदर आपको इतनी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इज मेन ऑर्गन, दैट इज़ पीनस। ओके, मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉपुलेशन के अंदर दैट इज़ दिस फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ होता है, मेल के अंदर पाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, इट हैज़ डिफरेंट साइज एंड ऑल द डिफरेंट रीजनल साइज डिफरेंस करता है इसका, 5 to 8 सेंटीमीटर एवरेज इंच, 8 दिस इज द एवरेज साइज। इसके 3 पार्ट होते हैं, देख लीजिए आप 3 पार्ट। एक तो है बेस होता है इसका, बेस है, देन वी हैव द शेफ्ट एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड शेफ्ट, इस पूरे को आई शुड से दिस इज द शेफ्ट एरिया। और तीसरा जो होता है दिस इज ग्लांस पेनिस, दिस टिप। 3 तरह की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। जो बेस है ना, इसको रेडिक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, बेस को क्या बोला जाता है, रेडिक्स। और ये जो है ना, इट अटैच विद द एब्डोमिनल वॉल, ओके राइट, तो इट इज अटैच विद द एब्डोमिनल वॉल, बहुत आसान है। देन शेफ्ट इज दिस द लॉन्ग एरिया, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी दिस द एरिया विच इज इन लेंथ, इस एरिया को हम बोल रहे हैं शेफ्ट। दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिस विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव द ग्लांस पेनिस और टिप, जिसको आप बता रहे हैं, ठीक है। सो टर्मिनल एंड द सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस भी बोला जाता है इसको, ग्लांस, ठीक है, और टिप। तो मियाटिस इसी का हमने पीछे नाम भी दिया था, जिसमें से यूरिथ्रा बाहर आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर जो पेनिस का होता है, उसके अंदर 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, उसमें से 2 जो होते हैं ना, वो डॉर्सल मस्क्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, डॉर्सल मस्क्यूलर, जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पोरा कवर्नोसा। वी मिस द स्लाइड, ओके वी आर हियर। अब देख लीजिए, ये जो पेनिस है, इसके अंदर 2 तरह, एक तो है 2 तरह के मसल्स मिल रहे हैं, एक हो रहा है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम और एक हो रहा है कार्पोरा कवर्नोसा। कार्पोरा कवर्नोसा आप देख सकते हैं आउटर वाला एरिया है, और उसके अंदर जो मसल्स हैं वो है कार्पोरा कवर्नोसा या स्पॉन्जियोसम, ठीक है, स्पॉन्जियोसम। अब डिफरेंस इनका क्या है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई होती है, किसकी, ब्लड की, ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, बिकॉज इनके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो ही ब्लड ज़्यादा आता है, दैट मीन्स ज्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल, तो ये जो है मस्क्यूलर, इनके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा रश होता है, बिकॉज देयर इज़ नो बून, सो बहुत ज़्यादा ब्लड रश करता है, एंड इट इज़ रेडी फॉर द यस इंटरकोर्स एक्टिविटी, राइट। जो अब देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जो पिनाइल ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर, इसकी जो पासेज है, दिस पासेज, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ द थिंग्स। स्पर्म की रिलीज के लिए भी रिक्वायरमेंट है, और यूरिन के लिए भी, यूरिनेशन के लिए भी, इसलिए इसको बोला जाता है यूरिनो जेनिटल ट्रैक। यूरिनो मीन्स यूरिन, जेनिटल मीन्स गैमेट को भी पास करता है। सो यूरिनो जेनिटल, यूरिन और जेनिटल पार्ट का गैमेट को पासेज वे कैरी करता है, पासेज देता है, रास्ता देता है चलने के लिए, तो इसलिए इसको बोला जाता है व्हाट, यूरिनो जेनिटल ट्रैक, यहाँ पे लिखा है, आप इसको राइट डाउन करेंगे। सो दिस इज अबाउट पेनिस। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नो मेल एक्सेसरी सेक्स, रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी पे आते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था
सेमिनल वेसिकल के बारे में क्या बोलते हैं इसको, बल्बोयूरेथ्रल है, देन या कॉपर्स ग्लैंड जो आपने बोला, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इनकी क्या क्या मसले हैं, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मेल जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना। ये सेमिनल वेसिकल है, ये वन पेयर है, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ ब्लैडर, ठीक है ना। अब देख लीजिए डायग्राम के अंदर आप सेमिनल वेसिकल्स को ढूंढिए खुद, तो सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पर हैं, ये देखिए। तो ये ऊपर ब्लैडर है, ये गोल वाला, इसके साथ में नीचे मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो डक्ट होता है वो ज्वाइन कर रहा है वास डिफरेंस का, पीछे हमने देख लिया, ये देख लीजिए, पीछे से आए थे हम, वर्ड वास इसके डक्ट वास डिफरेंस का इसके साथ ज्वाइन करता है इजैकुलेटरी डक्ट बनाने के लिए। चलिए, तो सेमिनल वेसिकल जो है, ये जो पार्ट है, ये क्या कर रहा है, इट produces or it forms the 60% of the volume of semen। अब सेमन क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड एंड स्पर्म और सब कुछ मिला के इसको सेमन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से 60% जो वॉल्यूम है, इसका जो अमाउंट है, उसमें से कंट्रीब्यूशन होता है सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। उसको सेमिनल फ्लूइड भी बोला जाता है ओवरऑल। तो सेमिनल वेसिकल के अंदर एक चीज़ रिलीज होती है, सिक्रीशन रिलीज होती है, दैट इज फ्रक्टोज एंड हार्मोन रिलीज करते हैं, जो मैंने आपको बताया। हार्मोन कौन सा, प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये क्या करता है, ये प्रोस्टोग्लैंडिन क्या करता है, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है, स्टिमुलेट्स द यूट्राइन कंट्रैक्शन, यानी यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है, और जिसकी वजह से, उस कंट्रैक्शन की वजह से स्पर्म क्या करता है, फॉरवर्ड टू दी फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर चली जाती है। जब तक ये कंट्रैक्शन नहीं करेगा तो खुद ये मूव हो नहीं सकती अभी, ठीक है ना। डेफिनेटली इट हैज़ ए स्ट्रक्चर टू मूव इटसेल्फ, बट इट नीड्स सम पर्टिकुलर पुश, एक्सटर्नल पुश टू कम आउट फर्स्ट। तो इसलिए इसकी यूट्राइन कंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन में होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल प्रोस्टेट की सबको। तो देखते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है। तो ये एक सिंगल लार्ज ग्लैंड है दैट सराउंड्स द यूरिथ्रा। किसके इर्द गिर्द है, ये यूरिथ्रा के अराउंड में है। देख लीजिए कहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम, चेक करिए, ठीक है। सो ये देखिए डायग्राम के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इसके अंदर एक मिल्क की सिक्रीशन होती है, जो कि 25% सेमन, जो अपनी सेमन की बात की, 25% उसमें से बनाता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसकी जो सिक्रीशन है, दो तरह की चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, इसकी सिक्रीशन के अंदर। एक तो साइट्रिक एसिड है और एंजाइम है। एंजाइम कौन सा है, एसिड फॉर इट इज़ फॉस्फेटेज एक्चुअली, PHOS, एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज, पेप्सिनोजिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो पीछे भी देखा। ये 4 तरह के एंजाइम्स भी इसमें रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर। ओके, इसकी सिक्रीशन ज़रूरी क्यों है प्रोस्टेट ग्लैंड की, बिकॉज इट एक्टिवेट्स द स्पर्म। ओके, सिम लाया बट एक्टिवेट नहीं किया, सिम का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसलिए स्पर्म बन चुका है, बट इसकी एक्टिवेशन ज़रूरी है। तो इसकी एक्टिवेशन तब होती है जब स्पर्म स्विम करने के लायक होता है, फ्लो करता है, बिकॉज उसकी टेल बन जाती है, तो टेल के बाद वो स्विम कर सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट्स प्रोवाइडिंग मोबिलिटी, इसके अंदर क्या करेगा, इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। तो ये हमारे पास था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने प्रोस्टेट ग्लैंड। अब चलिए आगे, मेल क्या, तो तीसरी चीज़ है एक्सेसरी ग्लैंड, वो होता है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का एक और नाम आपने अभी पीछे पढ़ा भी था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। कहाँ पे है ये, पेल्विक कैविटी के अंदर। आप इन चीज़ों को लिख के रखिएगा, पेल्विक कैविटी के अंदर, या मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, जो मैंने आपको बताया प्यूबिक बोन के पीछे जो है, उस वाले एरिया के अंदर ये कॉपर्स ग्लैंड आपको मिलता है। ओके, चलिए जी, कॉपर्स ग्लैंड अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो कहाँ है भाई, ये है कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये रहा, देख लीजिए कहाँ पे है एग्जैक्टली, ठीक है, प्रोस्टेट के नीचे। तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा भी इसके पीछे चल रहा है, तो वहाँ से आ रहा है ये, तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के साथ में है। अब इनके जो डक्ट हैं वो कहाँ ओपन करते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में ओपन करते हैं, जिनके अंदर एक फ्लूइड है, कैरिंग फ्लूइड, एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिड ऑफ द यूरिन इन द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के अंदर ओबियसली एसिडिटी है, बिकॉज यूरिन है, यूरिन के अंदर एसिडिटी है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी सिक्रीशन काम देती है। इसका मतलब इससे क्या होगा, अगर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होगा तो वहाँ से आने वाली जो स्पर्म्स हैं उनका डैमेज कम होगा, वो कम मरेंगी, ज़्यादा नहीं मरेंगी। ओके, मैक्सिमम जो है विल सर्वाइव। सो स्पर्म डैमेज के अंदर इजैकुलेशन के टाइम पे इनको प्रोटेक्ट करना कॉपर्स ग्लैंड का काम है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर।
Okay जी, now some important points, the key points what we have gone through, important points इसके देख लीजिए आप, लिखिए. So testes बनते कब हैं? जब इंसान पैदा होता है, जब वो 5वें महीने में होता है माँ के पेट के अंदर, मदर्स वॉर्म 5th मंथ के अंदर टेस्टिस की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, डिफेक्ट्स एक दो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से मेल्स के जो टेस्टीज हैं वो स्क्रॉटम में नहीं आ पाते, दे रिमेन इनसाइड द एब्डोमेन. ठीक है, इनसाइड द, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रह जाती है फिर बाद में कि वहाँ पे जो स्पर्म प्रोडक्शन ज़रूर होगा बट वो मैच्योर स्पर्म कभी नहीं होते, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है. ये जो नॉन डिसेंडिंग है किसकी, 2 टेस्टीज, अगर दोनों टेस्टीज स्क्रॉटल सैक में नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह गए, इस डिफेक्ट को बोला जाता है क्रिप्टोर्चिडिज्म. इट्स CRYP, यहाँ पे P लिख दीजिएगा, क्रिप्टोर्चिडिज्म, CRYPTORCHIDISM, क्रिप्टोर्चिडिज्म. और अगर कभी कभी एक टेस्टिस तो आ गया दूसरा नहीं आया, एक टेस्टिस बाहर आ गया है दूसरा टेस्टिस नहीं आया, दिस इज आल्सो डिफेक्ट जिसको बोला जाता है मोनोर्चिडिज्म. मोनोर्चिडिज्म. अब जो प्रोसेस है स्पर्म बनने का, ठीक है ना, स्पर्म बनने का मेल के अंदर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटो मीन स्पर्म, जेनेसिस मीन्स टू फॉर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है. फीमेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको oogenesis बोलते हैं. तो इन दोनों को मिलाकर, चूंकि दोनों गैमेट बनाते हैं इसलिए इन दोनों को मिलाकर गैमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है. ठीक है. इनग्वाइनल हर्निया के बारे में मैंने पीछे आपको बात की. सो प्रोट्रूशन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द स्क्रॉटम. ठीक है ना, इनग्वाइनल टिश्यू कटता है, इनग्वाइनल कैनाल के अंदर एक इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाता है जिसको हमने नाम दे दिया क्या, इनग्वाइनल हर्निया बताया जाता है उसको. उसके बाद स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी क्या है मेल्स के अंदर, एक्चुअली स्पर्म एग को जब फर्टिलाइज नहीं कर पाती, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म के अंदर वो ताकत नहीं होती कि वो एग को या ओवम को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, फर्दर जाइगोट बने या फर्दर प्रोसेसेस हों, उसके लिए वो हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए इसको बोलते हैं दिस मेल इज स्टेराइल. स्टेराइल, स्टेराइल है वो आदमी. ठीक है. और इम्पोर्टेंस, ये भी एक डिफेक्ट. इम्पोर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मेल के कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर होता है, पेनिस के अंदर के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होती हैं तो इसकी जो इरेक्शन है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज हो गए होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो नरम हो गए होते हैं, ब्लड सप्लाई आने के बावजूद भी वो टिश्यूज़ कंट्रैक्ट या रिलैक्स करने के अंदर कुव्वत नहीं रखते, इरेक्ट नहीं हो सकते. तो ये इनएबिलिटी जब हो जाती है तो इरेक्शन मेल्स के अंदर ऐसा होता है, इस वाले को बोला जाता है इम्पोर्टेंस. Importance, okay, IMPOTENC, importance. These are the important points related to the male reproductive structure. Okay, so this is what about we have to go through in different things about male reproductive structures. अब देख लीजिए इसका दूसरा पार्ट जो हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा होता है, देन इट कम्स विद डिफिकल्ट टू अपलोड बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू. वी हैव द 2G नेटवर्क, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. तो जितना हमने पढ़ा फिर उसको नोट्स बनाइए, लिखिए. सो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड लक गाइज.